observations and inputs which we have done in very different areas. Just to give an insight, because a lot of young crowd is here, I would like to all tell you that I have done my education in IIT BHU, now it's IIT BHU, but जो मेरे इनोवेशंस है, जो मेरे नवीनीकरण है, जो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें से 10% भी जिसमें मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसमें है. तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि there is not much of importance in terms of where you do your education and in which specialization you do your education. It is very important for you to understand this, and probably this will try to instigate your minds today in terms of understanding that there is nothing which is a very premier institution and there is nothing which is a low grade institution. It is your drive, it is your passion, and it is your ability to convert that passion into reality. So Dr. Kalam did not come from any high-fi premier institution, and I have been very, very fortunate, very lucky to have been under the mentorship of likes of Dr. Kalam, likes of Dr. Chidambaram, and likes of Dr. Mashelkar. So not many people are fortunate to get those kind of mentorship, value, guidance and direction from such kind of very, very different kind of intellectuals. So I used to meet Kalam sir in either very late in the night or very early in the morning. When I used to meet him in the morning, he used to take me for a walk in the garden. He was at 10 Rajaji Marg, post debiting his office as President of India, Rashtrapati Bhavan. And we used to have lot of invigorating aspects, and he used to challenge me into everything. Why this has not happened, why this is not happening, what is there, what is the problem, how it is going to happen. So the instigation led me to do lot of things which were not directly related to me. So today what I am going to talk to you about is a technology which has been, where I am one of the inventors. It was researched and developed at Asian Institute of Technology. It is a regional institute based out of Thailand. और उन्होंने मुझे बुलाया था मेरी एक टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाने के लिए कि वो चाहते थे कि बाकी एशिया के कंट्रीज में प्रोलिफरेट हो. और जब उन्होंने देखा उसको तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हम भी कुछ शोध कार्य कर रहे हैं, उसमें आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है. तो उस हिसाब से मेरा ये इन्वॉल्वमेंट हुआ ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में. सो आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, आई एम नॉट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बट मैं भेषज अभियांत्रिकी मैंने किया है. भेषज बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है. इट इज फार्मेसी. सो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया है, मेडिसिन में मैंने किया है. मेडिसिन और कंस्ट्रक्शन में कोई लिंक नहीं है. ये मैं आप लोग को आज उदाहरण के रूप में ये देना चाहता हूँ कि देयर इज नो बेसिक aspect of understanding that you have to have one, a very premier education, second, that you should be in your specialization, you will be able to innovate. No, I think you can innovate in any aspect, in any field. So that's the premise of this my short discussion today with you, and I am really obliged Dr. Ashutosh that you took this opportunity and asked me to be here. I'm very, very pleased. I am very happy that more than anything else, we have a lot of young minds here today. And that is what I feel very, very proud, because even Dr. Kalam was very, very passionate about young minds. And he used to be really very, very integrated into, and he used to get passionately involved with them. So at any given point of time, any of you young minds have any aspects, any clarifications, take my number from PAF and I'll be more than happy to be with you all. So with that, I'll just go on with respect to what I did. SmartGram is something which I conceptualized in 2014. मेरा एक ये था कि जो हम लोग करें, अगर उसका कुछ अंश हम लोग गांव के जो निवासी है उन तक पहुंचा सके, तो उससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता है. और इस चीज में जब मैं इन्वॉल्व हुआ था, तो कलाम सर ने
मुझे यही बोला था कि सब चीज छोड़ो, ये करो, क्योंकि 60% पॉपुलेशन हम लोग की आज भी गांव में रहती है, और अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो उससे बड़ी योगदान और उससे बड़ा योगदान तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो दैट वाज द प्रीमाइस। ये स्मार्ट ग्राम की मैंने संज्ञा रची थी। संज्ञा क्या रची थी कि 4 बेसिक फाउंडेशन होंगे। 4 बेसिक फाउंडेशन में ये कि एक आपको घर अच्छा रहे, और जो मल निकासी है, मल निकासी और सैनिटेशन एक अप्रोप्रिएट टेक्निक के अंतर्गत उसको किया जाए, ताकि उसके चलते आपको कोई वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो। आज की डेट में जितने गांव हैं उसमें 90% गांव जो पानी का स्रोत है वो ग्राउंड वाटर है, मतलब आप पानी जमीन से लेते हैं और उसको पीने और बाकी सब कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका सोच का जो आउटकम है वो पानी को कंटेमिनेट करेगा, तो उससे आपकी कंटेमिनेटेड वाटर और वाटर बॉर्न डिजीजेस आने की संपूर्ण संभावनाएं रहती है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, और उस हिसाब से हम लोगों ने किया था कि एक रिस्पेक्टेबल हाउस और सैनिटेशन सिस्टम ऐसा हो कि जिससे रोग ना फैले और कोई बीमारी ना आए। दूसरा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, सो यू हैव टू ड्रिंक ग्राउंड वाटर। कैन यू मेक इट अप्रोप्रिएट, बिकॉज ग्राउंड वाटर आज के डेट में 50 साल पहले और आज के डेट में जो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो आते हैं पानी में, और जो कंटेमिनेशन होता है, पहले अगर 100 था तो आज 1000 हो गया है। 1000 का TDS का पानी आप पिएंगे तो आपको जो सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है वो अधिकतम आते रहेंगे और जल्दी आते रहेंगे। उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट हो। uninterrupted power, something which can provide meaningful outcome, because power की एक बहुत बड़ी समस्या आज भी रहती है गांव में। और चौथा था हेल्थ केयर, तो टाइमली हेल्थ केयर अगर मिलता है तो इसको प्रणब जी को बहुत अच्छा लगा। ये 2016 में 2 जुलाई को उन्होंने इसको अपने अंतर्गत गोद लिया, और उसके तहत उन्होंने 100 गांव हरियाणा में गोद लिए। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने, ये पहली सरकार हुई जो उन्होंने स्मार्ट ग्राम का इस्तेमाल करके हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई। तो उस तहत ये जो मैंने शोध किया था उसको मैंने मात्र 1 रुपया में राष्ट्रपति भवन को लाइसेंस दिया, मात्र 1 रुपया में मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को दिया, और आज मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ इसको अनाउंस करूं कि 1 रुपया में मैं PF को भी ये देने को तैयार हूँ। सो PF कैन देन मेक इट एज 5 स्मार्ट ग्राम। तो स्मार्ट ग्राम की जो संज्ञा रची थी उसमें स्वर्गीय आदरणीय प्रणब मुखर्जी का एक ही ये था, उनका मॉडल था 3H। आपका मॉडल है 3P, उनका मॉडल था 3H, ह्यूमन, हाईटेक एंड हैप्पी विलेज, एंड योर मॉडल इज प्रोग्रेस, prosperity and peace. So if this match, I think you are creating the most others smart gram across the countries, and if you can create one model somewhere which has this entire concept in terms of how a village can be a smart, high-tech, happy, human, at the same time it is progressive and it is providing peace and it is providing prosperity. This can become a wonderful kind of exhibit which PAF and their associate sponsors can do. This is something which was a dream of Swargya Pranab Mukherjee. He wanted this. Today also we are working. The Pranab Mukherjee Foundation is there. The teams are there. Omita Paul, who was the secretary to the President of India, she is very passionately driving that aspect, and we are all working towards that. So what basically is this concept of Habitat Nivara Tantra, जो मेरी construction technologies हम लोगों ने जो develop किया है, उसमें 6 गुण है. This is 6 tenets. It's based on 6 tenets. It should be, you have to have it basically green and sustainable. कि ये green हो, sustainable हो, disaster resilient हो. उत्तराखंड जोन 5 में आता है, और आपको गजेंद्र जी, आपको और पैफ को भी मैं इनवाइट करता हूं कि जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हुआ था राष्ट्रपति भवन का, उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि राष्ट्रपति भवन के अंदर करेंगे, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है, क्यों ना हम लोग इसको प्रेसिडेंट स्टेट देहरादून में करें, ताकि देहरादून और उत्तराखंड के निवासियों को ये देखने का अवसर मिले कि डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी मिट्टी से कैसे आप बना सकते हो। तो वहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट था वो राष्ट्रपति भवन में, जो वहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राजपथ रोड पे वहाँ पे बना हुआ है। कभी भी आप लोग जाना चाहे तो मुझे जरा इन्फॉर्म कीजिएगा, 2-3 दिन लगता है
वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। इट इज़ अंडर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड मिलिट्री के अंडर में है वो, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, मतलब मिनिमल मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कैसे करें, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करें, और सिंपल टेक्निक हो ताकि जो काम करने के लिए वहाँ के लोकल लोग उसको यूटिलाइज कर पाए, और आदमी औरत जिसको पहले कोई भी शिक्षा नहीं मिली हो कंस्ट्रक्शन के माध्यम में, वो इसमें आराम से काम कर पाए। और उसके बाद यूज लोकल मटेरियल्स। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉइल यूज करते हैं। अब लोगों ने पूछा आप गड्ढा करोगे तो उसका क्या होगा, हम बोलते हैं कि आज के डेट में नरेगा के अंडर में सब जगह गांव-गांव में गड्ढा बना रहे कि पानी का स्रोत बने और वहाँ पे आप इकट्ठा करें। मिट्टी फेंकी जाती है, वो मिट्टी को हम लोग जब एक्सकवेट करते हैं, जो गड्ढा बनेगा वो दैट बिकम्स ए इंडिपेंडेंट वाटर रिजर्वायर फॉर द कम्युनिटी देयर। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी कंप्लीट सस्टेनेबल सोल्यूशन व्हिच हैपेंस। सो ये AIT का बना हुआ एक वीडियो है जिससे आपको पूरी ज्ञान मिल जाएगी कि ये एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी है। यह एक आधुनिक तकनीक से बनाई गई ईंटों वाली इमारत है, जिसकी ईंटें आम ईंटों से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि ये ईंटें पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हैं एवं ये ईंटें कई संरचनात्मक छेद से समाविष्ट हैं। इन ईंटों को भट्टी में पकाया नहीं जाता एवं इन्हें कोल्ड कंप्रेशन टेक्निक से बनाया जाता है। ईंटों में तकनीकी उभार की वजह से ये ईंटें एक दूसरे में फंसती हैं। ईंटों के मध्य में जो छेद होता है उसके माध्यम से उन्हें सरियों में कसा एवं जोड़ा जाता है। ईंटों के छेद पूरी इमारत में हवा का एक पर्दा बनाते हैं, जिससे इमारत के अंदर के तापमान, ध्वनि प्रदूषण एवं पानी के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। इस ढांचे में कंक्रीट एवं सरियों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। यह संरचना भूकंप और किसी भी प्राकृतिक आपदा विपदा से लोहा लेने में सक्षम है। हैबिटेट निवारक तंत्र टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ने स्मार्ट ग्राम के विकास में एक विशिष्ट तकनीक की निर्मित की है। नमूने के तौर पर लो कार्बन फुटप्रिंट और पेगेबल कंटूर रूफिंग, जिसमें कर्व पैंस और जॉइस्ट आधारित रूफिंग तत्व हैं। साथ ही इंक्लाइन मल्टी बैफल एनारोबिक रिएक्टर भी हैं, जो मल की निकासी और रूपांतरण में सहायक हैं। स्वच्छीकरण यह तकनीक या तरीका जल से उपजे रोगों पर अंकुश लगाने का काम करता है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर रोग जल जनित अस्वच्छता से जन्म लेते हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से तो उत्तम है ही, सुरक्षा और आरामदायक जीवन में भी सहायक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से न केवल बचाव होता है बल्कि गुणवत्ता के आधार पर जीवन स्तर भी बढ़ता है। टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको इवैल्यूएट किया और 1 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस टेक्नोलॉजी को आशा अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था उसको कन्फर किया। दिस इज अ बिग रिकॉग्निशन फॉर दिस टेक्नोलॉजी, फॉर द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज और पेरी अर्बन एरियाज, जहाँ पे उस टेक्नोलॉजी से ना ही केवल अच्छे घर बन सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिशियरी है उसमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लेके काम भी कर सकते हैं। अपना घर बनाते समय उनको पैसा भी मिल सकता है। तो ये इसका जो पीपल सेंट्रिक एस्पेक्ट था, इसको बहुत सराहा गया और इसको यूज करने का कोशिश किया। तो एक अंत में मैं खाली एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जो अवार्ड के बाद में से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनने वाले घरों की ज़रूरत को महसूस करते हुए देश के युवा अब आगे आने लगे हैं। पर्यावरण अनुकूल, सस्ता और टिकाऊ घर बनाने की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय हैं। ऐसा ही एक प्रयास किया गया है प्रफुल्ल नायक के द्वारा। आइए देखते हैं गुरुग्राम से रिपोर्ट। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना तहसील की हैं, जहां बना ये मकान आम मकानों या अन्य घरों से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर का तापमान, ध्वनि प्रदूषण और पानी के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। इस खांचे में कंक्रीट और सरियों का बहुत कम इस्तेमाल होता है।
यह संरचना भूकंप और किसी प्राकृतिक आपदा से लोहा लेने में सक्षम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनने वाले घरों की जरूरत को महसूस करते हुए इस तरीके के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी से अगर आप घर बनाते थे पहले, उसको एक मशीनीकरण करके, एक आधुनिकीकरण करके हम लोग ने इस हिसाब से कर दिया है कि उसको एक आम आदमी भी, जिसको कुछ नहीं मालूम हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम हो, वो खुद इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करके अपना एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाने का क्षमता रख सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर के विजेताओं की भी घोषणा की थी। प्रफुल्ल नायक भी उन्हीं विजेताओं में से एक हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया करवाना है। एक फाइनेंशियल मॉडल हमने इंक्लूजन मॉडल क्रिएट किया जो चल सकता है, और ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से आशा अवार्ड इसीलिए कंस्टिट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, कि ये जो टेक्निक्स है, ये जो टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस हुई है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इसकी पहचान मिले, इसको कैसे इसको बढ़ावा किया जाए, ताकि जो बिल्डिंग कम्युनिटी है वो अर्बन से ग्रामीण इसलिए नहीं जाना चाह पाती है कि उनको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की जो मार्जिन से बहुत कम रह जाती है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को अगर ये बढ़ावा मिलता है और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जाती है ग्रामीण में, तो इसका बहुत लाभ वहाँ ग्रामीण वासियों को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत में 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान हो। नई तकनीकी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य से वक्त की बचत तो होती ही है, साथ ही लागत भी कम आती है। इसके तहत बने मकान भूकंप रोधी भी होते हैं। इस तकनीकी से बनाए गए मकान न सिर्फ मध्यम और गरीब लोगों के घर के सपने साकार करेंगे, बल्कि पर्यावरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर सिद्ध होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुरुग्राम, हरियाणा। So concluding the inputs, this is a model which I thought about कि अगर एक गांव स्मार्ट ग्राम, 22 स्मार्ट ग्राम को अगर हम बनाए कहीं, तो उसमें क्या क्या आता है, सब चीज़ हम लोगों ने इसको काफ़ी दिन से और काफ़ी सालों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्या ज़रूरतें रहती है गाँव में, क्या चीज़ की जो बेसिक एम्यूनिटीज़ रिक्वायरमेंट है, वो एक सस्टेनेबल एम्पावर्ड विलेज बने। और ये आशा करता हूँ मैं कि डॉक्टर आशुतोष और पीएफ टीम इसको एक अलग से एक फोकस लेके चले। आपके यहाँ जो स्पॉन्सर्स है जो इसको करना चाहते हैं, हम लोग उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। जो 100 गांव गोद लिए गए, उसमें मेवात में 20 गांव है, वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अलग से करके रखा है, उसको कर सकते हैं। या जहाँ पे आप उत्तराखंड में जहाँ आप लोग ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हो, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो with that background, I was just giving an input. I end this presentation is there with PAF and you can always access that. There are more technical details onto this. मैं खाली एक ही बोलना चाहता हूँ कि as the young future leaders of our country, please understand that there is only one perspective which you need to be very clear. If you do that one thing which is very important, और वो है सपना देखना। कलाम सर भी यही बोलते थे, सपना देखो, सपना देखो। सो सपना देख के उसको उसके सपने देखने से आपको कुछ विचार आएंगे, आइडियाज विल कम टू यू। व्हेन यू फैंटेसाइज, व्हेन यू डू ड्रीमिंग, यू गेट आइडियाज। सो आइडियाज क्या है, बहुत सारे आने लगते हैं। तो उसको आप थोड़ा कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल का डिजिटल जमाना है। यू कैन ऑलवेज कैप्चर योर आइडियाज। आइडियाज विल रिमेन वेरी फ्लीटिंगली विथ यू, इट विल नॉट कम अगेन। सो कैप्चर कीजिए और उसको पैशनेटली, डिटर्मिनेशन के साथ में उसको फॉलो कीजिए। तो उससे जो नवीनीकरण आएगी, नवीनता आएगी, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको आईपी बोलते हैं, वो आप बना सकते हो। और कोई ज़रूरत नहीं कि आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड होने की, कि आपने पेटेंट किया है तो आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आज के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल से ड्रीम से रियलिटी तक लाने में, उसको जो आप अपना मेहनत से उसको करेंगे, उसको कमर्शियलाइज करना बहुत जरूरी है।
कमर्शियलाइज अगर करते हैं तो उसका वैल्यू आपको समझ में आता है और उसको आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने ये कुछ सोचा था, उसको मैंने ये किया है। तो अभी मैंने सुना गजेंद्र जी को, आप बोल रहे थे, गजेंद्र जी आप बोल रहे थे अदरक आपने बनाया 20 टन बनाया, आप वहीं पे सीमित मत रहिए। अदरक इज पेरिशेबल, 2-4 दिन में वो खराब होने की, या 10 दिन में 15 दिन में खराब होने की स्थिति, उसको प्रोसेस कर दीजिए। Ginger juice is one of the very potent juice which is now going into many pharma companies across the globe. इसको प्रोसेस करेंगे, वैल्यू एडिशन होगा आपका, वैल्यू एडिशन करेंगे और आपको प्राइस भी मिलेगा और उसका आपका शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगा। अगर अदरक की शेल्फ लाइफ 1 महीना है तो जूस का शेल्फ लाइफ 1 साल हो सकता है आपका। तो ये मेरा खाली यही बोलना है, जैसे मुन्नी बोल रही थी कि मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगी, मुन्नी कोई समय व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ आप सोचते हो कि हाँ मैं सपना देख रहा हूँ बैठे बैठे, तो उससे आइडियाज जो आएंगे वो आपकी जो बाकी श्रम है उससे 10 गुना 1000 गुना अधिक उसका वैल्यू आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग जो यंग माइंड से, उसके ऊपर आप अपने आप को आधारित कीजिए कि मैं सपना देखूं, उसको साकार करने का रास्ता ढूंढूं और उसको, उसकी वजह से मैं नवीनता और नवीनीकरण लाऊं, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब जो आपको सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज, इनोवेशन इज नथिंग, मतलब आप ये हमेशा ये मत बोलिए कि रॉकेट ने जिसने बनाया वही नवीनीकरण है, वही नवीनता है, नहीं। छोटा सा चीज, इवन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज, महत्वपूर्ण सकारात्मक जो आप उसको प्रोग्रेस लाते हैं, वो भी इनोवेशन बोला जाता है और उसको भी नवीनीकरण के परिभाषा दी जाती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत बड़ा शिक्षित होना, बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री होना या बहुत बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आपका बैकग्राउंड रहना, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पैफ को और डॉक्टर आशुतोष जी को फॉर कॉलिंग मी हियर, गिव एन इनपुट। The cost of those stations they have risen from around 2 crore to now 5 crores. तो मेरे को लगता मनोज, if you can examine it, we will send a proposal to a presentation उनको करो, और तो सब बिल्डिंग वाली सब लाइन where we have to change the rather save the cost, वहाँ पर ये बहुत काम आ सकता है। और वहीं पर गांव की ये जो मैंने जो इसे समझा, वो जो गांव की मिट्टी से ही वहाँ को हम ईंटें पत्थर लेने की कोई जरूरत नहीं, and we can develop it in faster as well as एनर्जी एफिशिएंट। तो जैसे सोचता है, इस पर एक कंसेप्चुअल हम लोग बात करेंगे, है ना। थैंक यू। So the second value what we are going to do from this is that you are giving employment opportunity to the locals. If you are giving them, if they have sustenance measure in their own local areas, why they will shift or why they will migrate to urban areas? So the aspect of reducing the migration to urban is one of the very value propositions of this kind of technologies, which has been evaluated very thoroughly and very nicely by the Urban Development Ministry. And they have said that yes, these are the technologies which we should try to deploy in the rural and peri-urban areas. Thank you. Thank you.